Yeah.
समय Yunalasi or Batangarami. Propulai my party. Let's go to the time of worship. Before that, kami Prabhu ko may mali. Nas nicho kami kami gawin. Amen. Amen. More nas nicho, more kami, more nas nicho, more kami.
Let's all close your eyes and surrender ourselves to the Lord. हम इस समय छोड़ रहे हैं. We are going to leave everything away aside. Let's not see what others are doing, what we are up to today. But this time, let's surrender ourselves with a song of worship to the Lord. Prabhu, like our presence because Lord, you're worthy to be praised. Let's all open our mouth and say, thank you, Lord, Father. We're going to thank Him and say, Lord, the great things that you've done in my life, Father, Lord Jesus. And even if today I'm standing here, Lord, in your presence, oh Father, Lord, that is because of your will, oh Father, Lord Jesus, my life, oh Father, Lord Jesus. The whole week He has taken care of you. No matter so many circumstances, He's looked towards you. And let's say thank you to the Lord. Let's give all the thanks and glory to Him in this time. Open up your heart and open up your mind. Open up your mouth and say, Lord, we thank you, Lord, this time, Father, Lord. Because of Father, Lord, you're worthy to be praised, Lord Jesus. And there's no other name like yours, Lord Jesus, Father, Lord. We want to give you all glory and honor, Lord Jesus. Oh, hallelujah, Jesus.
प्रभु कति महान, प्रभु कति महान, प्रभु कति महान, प्रभु कति महान। Today, let us not be hardened in our hearts, O Father, Lord Jesus. Let's be the fleshly heart that desires you, O Father, Lord Jesus. We want to give ourselves in your hand today. We want to give each and every one that is standing here right now in your hands, O Lord Jesus. We want you to touch them, O Father, Lord Jesus. Oh Father, Lord, as we come into your presence, O Father, Lord Jesus, your Holy Spirit to lead us and guide us, O Father, Lord Jesus. This time as we worshipped and praised your name, O Father, Lord Jesus, we love to give all that to you, O Father, Lord Jesus. That as we go further, listen to your word, and everything that we do, O Father, Lord, let's do with the reverence for you, O Lord Jesus, O Father. Thank you, Lord, for this time. Thank you, Lord, for speaking on us, Lord. Thank you, Lord, for everything. In Jesus Christ's name I ask you, Lord. Amen. 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 What is something close to something? धन्यवाद परमेश्वरलाई है यो सुन्दर समय हामीलाई दिनुभयो परमेश्वरले अनि हामीलाई विगत हप्तादेखि सुसाथ राखेर टाढा नजिकबाट तपाईँ हामी सबैलाई परमेश्वरले यहाँसम्म ल्याउनुभयो त्यसको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि तपाईँहरूलाई पनि है हुन्छ हाम्रो माझमा कोही नयाँ मान्छे कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने उठेर है तपाईहरुले आफ्नो नाम ठेगाना भनिदिनुहोस्। यदि हुन सक्छ जय मसीह दिव्या हुन्छ थ्यांक यू धन्यवाद कृपया है ओके ल हुन्छ धन्यवाद म बाबुको लागि हामी ताली बजाउनेछौँ। हुन्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद उहाँ चाहिँ आज हाम्रो मण्डलीमा आउनुभयो है परमेश्वरलाई उहाँले यहाँसम्म ल्याउनुभयो धन्यवाद परमेश्वरलाई है अनि उहाँको साथीले उहाँलाई ल्याउनुभयो उहाँलाई पनि धन्यवाद। हुन्छ अनि हामी एकचोटि जोरदार ताली बजाउनेछौँ हामी सबैको लागि है। हुन्छ धन्यवाद परमेश्वरलाई है हामीलाई 2025 मा जनवरी महिना हाम्रो जनवरी महिना बितिसक्यो है जनवरी भ्याएर पनि हामी फेब्रुअरीमा पुगेका छौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद फेब्रुअरी महिनाको पहिलो साता पहिलो हप्तासम्म परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षित साथ राख्नु भएको छ। सो परमेश्वरको महिमाको लागि हामीलाई अनि एक अर्कासँग एउटा भेट मुलाकातको लागि परमेश्वरले हामीलाई टाढा नजिकबाट अनि यस ठाउँमा भेला गर्नुभएको छ। हामी परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु है हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। हुन्छ हामी यति बेला एउटा वचन पढ्नेछौँ साम 135:1-2 है अनि हामी भजन सङ्ग्रहको 135 को 1 र 2 लाई हेर्नेछौँ। हुन्छ तपाईहरुले पाउनुभयो होला है एक यहाँ यसरी लेखिएको छ प्रभुको प्रशंसा गर प्रभुको नाउँको प्रशंसा गर
हे प्रभुका सेवकहरू हो, उहाँको प्रशंसा गर। तिमीहरू जो प्रभुको भवनमा, हाम्रो परमेश्वरको भवनमा सेवा गर्दछौ, प्रभुको प्रशंसा गर, किनभने प्रभु भलो हुनुहुन्छ। उहाँको नाउँको भजन गाऊ, किनकि यो मनोहर छ है। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद है। परमेश्वरको प्रशंसा, परमेश्वरको महिमा हामी गर्नेछौँ र गरिरहनेछौँ। र जो परमेश्वरले हामीलाई यस ठाउँसम्म ल्याउनु भएको छ, सुसाथ राख्नु भएको छ, त्यसको निम्ति म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, हामी हाम्रो समयलाई एकदमै मध्यनजर गरी है, हाम्रो समयलाई ढिलो नगरी हामी हाम्रो सेसनतिर जानेछौँ। र म धन्यवाद दिन्छु वर्सिप टिमलाई पनि, र रेचल बाबु आएर वर्सिप टिमलाई लिडिङ गर्नुभयो, म धन्यवाद दिन्छु है, उसले आफ्नो समय हामीलाई दिनुभएको लागि। र अरू बाँकी सबै जवानहरूलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्रभुले आशिष दियो। हुन्छ, हाम्रो वर्सिप पछि अनि हाम्रो अब यति बेला हाम्रो समय सेसन रहेको छ है। हिब्रूको पुस्तक पढ्ने है समय रहेको छ। अनि 2 अध्यायको 13 देखि 18 सम्म हाम्रो बाबु रुथ आएर पढिदिनु न। दुई अध्यायको 13 देखि 18 यसरी लेखेको छ, र फेरि म उहाँमाथि मेरो भरोसा राख्नेछु। र फेरि उहाँ भन्नुहुन्छ, हेर म र परमेश्वरले मलाई दिनुभएका यी छोराछोरीहरू, किनकि छोराछोरीहरू मासु र रगतका सहभागी भएका हुनाले उहाँले पनि त्यही स्वभाव लिनुभयो, ताकि मृत्युद्वारा नै मृत्युको शक्ति भएकोलाई अर्थात् दियाबलसलाई उहाँले नष्ट गरून्, र मृत्युको डरले आजीवन बन्धनमा परेकाहरूलाई उहाँले मुक्त गरिदेऊन्। किनकि साँच्चै नै उहाँले स्वर्गदूतहरूको होइन तर अब्राहमका सन्तानको वास्ता गर्नुहुन्छ। यसै कारण हरेक कुरामा उहाँ आफ्नै भाइहरू जस्तै बनाइनु पर्यो, र मानिसहरूका पापको प्रायश्चित गर्नलाई परमेश्वरको सेवामा उहाँ कृपालु र विश्वस्त प्रधान पुजारी बन्नुभयो, किनकि उहाँ आफैले कष्ट भोग्नुभयो र परीक्षित हुनुभयो। यसैले परीक्षामा पर्नेहरूलाई उहाँले सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। हुन्छ, धन्यवाद अनि बाबु रुथमाईलाई है। हाम्रो माझमा हिजो पढिदिनु भएको अध्यायको पवित्र वचन है। तपाईँहरूलाई थाहै छ है, पवित्र वचन र बाइबल अनि हाम्रो लागि कति अनमोल छ पवित्र वचन है। यहाँनिर 16मा यसरी लेखेको छ, तपाईँले सुन्नुभयो होला है। किनकि साँच्चै नै उहाँले स्वर्गदूतहरूको होइन तर अब्राहमका सन्तानको वास्ता गर्नुहुन्छ। आज अब्राहमका सन्तान को भन्छ, तपाईँ हामीहरू अब्राहमका सन्तानहरू, अब्राहमका त्यागका हामी सन्तानहरू हो, परमेश्वरका सन्तानहरू हो, हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ परमेश्वरले। धन्यवाद परमेश्वरलाई है। अनि बाबुलाई पनि हुन्छ। अब हामी यो समय हाम्रो भेटीको रहेको छ है। हामी भेटी उठाउनेछौँ है, भेटी उठाउनेछौँ। हुन्छ, यतिखेर भेटी हाम्रो माझमा
बाबु भाइ सिर्जना बहिनी सिर्जना आउनु भएन ऊ भाइको भाइ के उहाँको नाम रोहन भाइ आएर रोहन भाइ आएर भेटी उठाइदिनुहोस्। आउनुहोस् हामी अफरिङको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु परमेश्वरमा फेरि पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। विशेष गरेर प्रभु आफ्ना छोराछोरीले जुन तपाईँको नाउँमा यी भेटीहरू ल्याएका छन् प्रभु परमेश्वरमा, यसलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस् प्रभु। अनि आफ्नो छोराछोरीको कामहरूमा हरेक कुराले जे पनि गर्दछ त्यसमा तपाईँको महिमानी प्रशंसा गरिदिनुहोस्। अनि यो भेटीलाई प्रभु हामी तपाईँको काममा हामी प्रयोग गर्छौँ प्रभु, तपाईँ जान्नुहुन्छ र प्रभु फेरि पनि यो भेटीलाई तपाईँको हातमा दिँदछु प्रभु। हरेक हातहरूलाई तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस् जसले यस भेटीमा पार्टिसिपेट भएका छन्, सबै कुरो तपाईँको हातमा दिन्छु प्रभु। धन्यवाद यीशु प्रभुको नाममा। हुन्छ, रोहन भाइलाई धन्यवाद है, भेटी उठाइदिनु भयो। अनि हाम्रो सम्मानित पास्टरलाई धन्यवाद, उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो है। हुन्छ, हामी हाम्रो समयलाई एकदमै मध्यनजर गर्दै है समयतिर हामी ध्यान दिनु एकदमै आवश्यकता छ र यति बेला हाम्रो समय दबाईको रहेको छ। तपाईँहरूमा हप्ताभर तपाईँहरूले पाउनुभएको आशिष अनि तपाईँहरू राख्न सक्नुहुनेछ है। टेस्टमनी तपाईँहरू दिन सक्नुहुन्छ। यसको नाममा जय मसीह सबैलाई। मेरो गवाई के छ भन्दाखेरि मैले म काममा गएको थिएँ। कामबाट आउँदाखेरि बाबु घरमा आएको सानोवाला, अनि एउटा 15वाला केटाले भन्यो तिम्रो बाबुलाई त 4जना लगेर गयो गाडीमा राखेर भन्यो। म त मेरो त हात खुट्टै नचल्ने पुरा लुला परेर हे प्रभु येशू भनेर प्रार्थना गर्नु गरे। यति जसले चिल्लाएर रोएँ क्या भित्र। अनि पछि पास्टरबालाई फोन गरेँ, पास्टरबाले भन्नुभयो सुर्ता नगर्नुहोस् बहिनी, 2 घन्टा वेट गर्नु भन्नुभयो पास्टरबाले। अनि यति रोएँ। पास्टरबाले भन्नुभयो आज आउँछु नभेटाएपछि पुलिस कम्प्लेन गर्नुला भन्नुभयो पास्टरबाले। अनि जे कसैलाई फोन गरेँ, समकारी ठुला मान्छेलाई पनि भन्यो कि त्यसले, त्यही मान्छेले लगेर गयो। कन्नडमा बोल्छ, मलाई त आउँदो पनि खै। अनि पछि यति रोएँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद। छोरीले लोकेसनमा हेरेर कहाँ अब गार्डनमा खेल्न लागेको मेरो छोरा।
अनि कहाँ कहाँ पुर्यायो त्यो मान्छे यहाँको होइन भने यति रोए प्रभुलाई धन्यवाद। अनि त्यो किङगिरी भन्छ नि, किङगिरीमा पानीमा डुबेको कुवामा डुबेको मेरो छोरा दौ परमेश्वरले त्यहाँबाट निकाल्नु भयो। हामी 3 बार माछा लागेर निकालेको बच्चा यसरी हरायो भने त मेरो हात खुट्टा एकदम काम नलाग्ने लुगा पऱ्यो भने दिनभरि रोएर अनि पछि पर्खिएर सुन्नुभयो। सुरक्षाले आउनुभयो, धेरै धेरै खुसी लाग्यो। धन्यवाद। वास्ता चाहिँ परमेश्वर हुन्छ है। हाम्रो वास्ता अनि फिक्री चाहिँ परमेश्वर हुन्छ भनेर बहिनीको बच्चामा के छ। हुन्छ, सबैलाई टिकुन दिएपछि मेरो पनि सानो दबाई छ है। अनि दबाई भने के छ भनेदेखि यो फेब्रुअरीको पहिलो हप्ता है, लास्ट मन्थमा जनवरी पहिलो हप्ता पहिलो विकमा पहिलो हप्तामा है, जब हाम्रो यहाँनिर सेवाकाई भयो। सेवाकाई पछि मेरो छोरी सानो छोरीले भन्यो पापा म बाहिर घर जान्छु, घर गएर म तयारी भएर अर्को मेरो साथीसँग जानुपर्छ भनेर। ठिक छ, अनि गाडी दिनुहोस् भने गाडी दिएँ। गाडी लगेर गयो। गाडी लगेर आउँदाखेरि त उसलाई एक्सिडेन्ट भएछ है, कसले आएर हिर्काएर गएछ र उसलाई केही पनि भएन। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, अलिकति चोट लागेको छ उसको हातहरूमा, तर कुनै प्रकारको खतरा चाहिँ उसमा भएन। प्रभुलाई महिमा भएको छ है। गाडी ठुलो होइन तर छोरीको जीवन चाहिँ ठुलो हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी मानिसको जीवन चाहिँ ठुलो होइन, प्रभुले उसलाई बचाउनु भएको छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, प्रभुले आशीर्वाद दिएको होस्। अनि म प्रार्थना गर्छु तपाईँहरू पनि सुरक्षाको साथ जब तपाईँहरू बाहिर जानुहुन्छ यताउता हेर्दै जानुहोस् है। तपाईँहरूले एकदमै प्रार्थना गर्दै हिँड्नुहोस् बाटाघाटामा जब हिँड्नुहुन्छ। आजकल समय यति खतरा छ, यति डरलाग्दो भएर गएको छ। किनभने मान्छेहरू जबरजस्ती हामी अर्कै देखेर हो कि के न हो, हामीलाई के गर्न आउँछ, सिधै हाम्रो उसमा आउँछ अनि हामीलाई नै गाली दिन्छ फेरि है। अस्ति त्यस्तै भयो मलाई। अनि जब मैले गाडी लगेर जाँदै थिएँ, एउटा मान्छे सिधा आयो। अन्त मैले भने आँखा देखेर हेरेर हिँड्नु, त्यो रङ साइडमा आउँदैछ, तर मलाई नै त्यसले गाली दिइरहेको थियो। त्यस धेरै समस्या आउँछ। तपाईँहरू होसियारसँग हिँड्नुहोस्। बाटोमा हिँड्दाखेरि परमेश्वरको वचनले भन्दछ निर्बुद्धि जस्तो होइन तर बुद्धिमान जस्तो भएर है हामी जिउनुपर्छ, हिँड्नुपर्छ, निर्बुद्धि जस्तो भएर होइन। बुद्धिमान मानिसहरू जहिले पनि के गर्छ, यताउता हिँडिरहेको हुन्छ होइन। जहिले पनि हाम्रो लक्ष्मी बहिनीले भन्छ के अरे विशालले गाडी चलाउँदा यताउता हिँड्दै हिँड्छ भन्छ है। त्यो राम्रो असल कुरो हो होइन। पछिपट्टि हामी हेर्नुपर्छ के भइरहेको छ, कस्तो भइरहेको छ, समस्या कस्तो हुन्छ, हामीमा अघि आउनेको समस्या कस्तो हुन्छ, हामीले हेर्दै हिँड्नुपर्छ। र प्रभुले है हामीलाई सहायता गरेको होस्, हामीलाई मद्दत गरेको होस्। र यो फेब्रुअरी महिना चाहिँ सबैको लागि असल भएको होस् भन्ने म बिन्ती गर्छु। हुन्छ, हुन्छ, सबैलाई जय मसी। तपाईँलाई मेरी क्रिसमस अनि ह्याप्पी न्यू इयर एकैचोटि। तपाईँहरू साथमा थिएन तर पनि हामी डिसेम्बरमा यहाँबाट गएका थियौँ। अनि विशेष मेरो गवाई भन्दाखेरि पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिनका लागि म यहाँनिर उभिएको छु है। तपाईँले मेरो लागि अनि मेरो वाइफको लागि प्रार्थना गरिदिइराख्नु भएको थियो। अनि विशेष है हामी डिसेम्बर महिनाबाट गयौँ अनि क्रिसमस मनाउनुलाई मात्रै हामी दिल्लीमा गएका थियौँ। तर क्रिसमस सकेर चाहिँ फर्किहाल्ने भनेर चाहिँ हामी सोचेर है रुम पनि त्यतिकै राखेर बसेका थियौँ। क्रिसमस हामीले असल तरिकाले मनाउन पायौँ। अनि जस्तो क्रिसमस सक्यो हामी तर्खर गइरहेको थियो आउनुको लागि। फेरि है हाम्रो आमा बिमार हुनुभयो। हुन्छ 1-2 दिन चाहिँ फेरि हस्पिटल लगेर लिएर आएर चाहिँ आउनु पर्ला भनेर सोचिरहेको थिएँ। फेरि है एकदमै साह्रो हुनुभयो। अनि हामी त यहाँनिर आउने एकदमै प्लान बनाइसकेको थिएँ। एकदमै मैले त उता यहाँबाट जाँदाखेरि पनि म फर्केर नै आउँछु भनेर सोचेर गएको यहाँबाट है। तर मेरो इच्छा भएन है, प्रभुको इच्छा अर्कै रहेछ भन्ने मैले बुझ्न सकेँ। अनि म चाहिँ चाहन्थेँ तपाईँहरूसित यसरी सङ्गति गर्दै यहाँ बेङ्गलोरै मलाई राम्रो नै लागेको थियो। अनि 1 वर्ष बस्यो तपाईँहरूसित सङ्गति गर्ने मौका पाएँ। तपाईँलाई धन्यवाद है, तपाईँहरूसित यसरी प्रभुको कार्यमा अगाडि सहभागी हुन पाएकोमा
तपाईँहरूलाई हृदयबाट धन्यवाद अनि स्थानीय पास्टर बाउलाई अनि उहाँको परिवारलाई एकदमै धन्यवाद चाहिँ उहाँले हामीलाई एकदमै आँखादेखि लिएर है गइन्जेलसम्म अनुग्रह गर्नुभयो, उहाँहरूले सहायता गर्नुभयो। हामी त यहाँनिर फर्केर आउनुको लागि है 2 महिनाको रेन्ट पनि तिरिसक्यो, त्यो रेन्ट पनि तिर्दै बसिरहेको थियो उता घरबाटै उताबाट दिल्लीबाटै हामीले रेन्ट पनि तिर्दै बसिरहेको थियो आउनुकै लागि। तर है त्यस्तो मिलेन है, र अन्तिममा हामीले डिसिजन गऱ्यौँ दिल्लीमै बस्ने भएर, किनकि त्यहाँनिर आमा र बाबा मात्रै हुनुहुन्छ अनि आन्टीहरू हुनुहुन्छ है, उहाँहरूको साथमा पनि हामी छौँ है। त्यही भएर चाहिँ हामी टाढोमा बसेको पनि उहाँहरू कोही बेला बिमार हुनुहुन्छ है, त्यतिखेर हस्पिटल लानको लागि धेरै तकलिफ हुन्छ भनेर चाहिँ हामी उतै बस्ने डिसिसन गरेका छौँ। तपाईँहरूलाई एकदमै धन्यवाद। आउँदो दिनहरूमा तपाईँले हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् है। प्रभुको इच्छा भए फेरि पनि हामी भेट्नेछौँ यसरी नै है, अनि तपाईँहरूसित यसरी सङ्गति गर्ने मौका प्रभुले फेरि पनि जुटाइदिउन्। एकदमै असल मैले सङ्गति पाइरहेको थिएँ, एकदम राम्रो युथहरूसँग पनि छिटो घुलमिल भइसकेको थियो हामी है, यहाँनिर तपाईँहरूसित हाम्रो अग्रजहरूसँग पनि। तर के गर्नु है, प्रभुको इच्छा सायद थिएन जस्तो लाग्यो है। तपाईँहरूले हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। हामी दिल्लीमा छौँ, त्यहाँ पनि असल तरिकाले सेवाकाई गर्न सकौँ। त्यहाँनिर पनि हाम्रो यहाँ पास्टर बाउको दिदी हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामीले सङ्गति गरिराखेका छौँ। त्यहाँ पनि हामी प्रभुको कार्यमा अगाडि हात बटाउन सकौँ भनेर तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। आउँदो दिनको लागि हामी प्रार्थना गरिदिनेछौँ। तपाईँहरूको लागि पनि एकदमै दिन प्रतिदिन प्रार्थना गरिराखेको छु है। आउँदो दिनहरूमा पनि तपाईँहरूको जीवनमा प्रभुले धेरै आशिष दिएका हुन् है। हुन्छ, फेरि पनि सबैलाई मेरो हृदयबाटै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सायद आज लास्ट सन्ध्यालाई तपाईँहरूसित यसरी बस्न पाएको है, म तपाईँहरूको लागि अनि प्रभुको महिमाको लागि सानो भजन चाहिँ गाउनु मन लाग्यो है। हुन्छ, यस समय टाइम छ नि है, 2 मिनटको भजन गाउँछु है। हुन्छ, यो भजनले चाहिँ भन्छ परम प्रभुले जुटाउनुहुन्छ है। अनि हाम्रो हरेक स्थितिमा प्रभु हुनुहुन्छ, हामी केही छैनौँ भनेदेखि पनि प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई यो भजनले एन्करेज गर्छ। त्यसैले तपाईँहरू है केही नहुँदाखेरि तपाईँहरू हरेस नखानुहोस्, सबै कुरा गुम्दाखेरि प्रभु तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ, प्रभुले पर्खिराख्नुहुन्छ तपाईँलाई है। उहाँमाथि आँखा लगाउनुहोस्। अनि यो भजनले तपाईँलाई थाहा छ म मजाक गर्नु सक्नुहुन्छ। जब बाँचो भयो बलिदानको लागि, अब स्वर्गबाट जुटाउनु प्रभुले जुटाउनुहुन्छ। जब मैले भने परम प्रभुले जुटाउनुहुन्छ। गरियोमा परम प्रभुले जुटाउनुहुन्छ।
हुन्छ अमज बाबुलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। उहाँ चाहिँ हाम्रो माझमा छँदा है हाम्रो पियानो बजाउनुहुन्थ्यो, सबै कुराहरू उहाँले लिडिङ गर्नुहुन्थ्यो अनि तपाईँको मिठो मिठो गीतहरू गाउनुहुन्थ्यो है। धन्यवाद। अनि जुन समय हामीले उहाँसँग पायौँ है, फेरि पनि हामी प्रार्थनामा सम्झिरहनेछौँ। उहाँ दिल्ली भए पनि है उहाँ पनि हाम्रो सेवाकाई छ है, उहाँ पनि हाम्रो आफन्तहरू छन्। उहाँ चाहिँ उहाँ बस्नुहुन्छ, उहाँ पनि उहाँ सेवाकाई गर्नुहुन्छ। उहाँले हाम्रो लागि पनि प्रार्थना गर्नुहुन्छ र हामी पनि उहाँको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ र हामी सम्झिनेछौँ, याद गर्छौँ है। उहाँलाई धेरै नै मिस गर्नेछौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। हुन्छ, अरू कसैको दबाई छ सक्नुहुन्छ? मेरो गवाई यो छ भने म त्यो सानो नानीको चाहिँ अस्ति आधार कार्ड बनाउनु गएको थिएँ, तर स्कुलबाट लेखेर पनि दिएको थियो, सबै कुराहरू प्रुफहरू राम्रैसँग दिएको थियो। उता जाँदाखेरि भन्यो कि तिमीलाई लाइट बिल चाहिन्छ, अनि एग्रिमेन्ट पनि चाहिन्छ, रासन कार्ड चाहिन्छ, तर बन्न सक्दिनँ भनेर भनेको मलाई। माथि गएँ यताबाट, किन त स्कुलबाट लेखेर दिएको छ किन बन्दैन भन्दाखेरि हुन्न, स्कुलबाट लेखेर पनि हुन्न भनेर भन्यो। अनि म चाहिँ धेरै निराश भएर माथिबाट तल आएँ। अब स्कुलवालाले चाहिँ टिचरहरूले सरहरूले प्रिन्सिपलले भनेछन् आधार कार्ड बनाएर ल्याऊ भनेर भन्छन्, तर उता जाँदाखेरि बनेन। अब म के गर्ने? त्यो बाबुको चाहिँ अब ड्याडी पनि छैन, मैले चाहिँ कसरी बनाउने, कुन उपाय गर्ने भनेर धेरै टेन्सन भएर माथिबाट उत्रेर तल आएँ। तल आउँदाखेरि एउटा मान्छे चाहिँ बाइकमा आएर तुरुन्तै त्यहाँ, म त्यो मान्छेलाई चिन्न पनि चिन्दिनँ, बाइकमा खडा भयो, बाइक चाहिँ खडा गरेको थियो। अनि मैले सोधेँ कि लिभिङ सर्टिफिकेट पनि लिएर आऊ त्यो नानीको भनेर भन्यो। अब मोबाइलमा छ, खै यता घर कतै छ भने त्यसलाई निकाल्छु भनेर त्यो मान्छेसँग सोद्धाखेरि त्यसले चाहिँ मलाई भन्यो मोबाइलमा छ त भन्यो। मैले भने मोबाइलमा छ भनेर भन्दाखेरि अनि स्कुलले लेखेर दिएछ किन भएन भनेर मेरो हातबाट कागजपत्र ट्याक्कै समातेर आऊ तिमी भनेर माथि गयो। आधार कार्ड जहाँ बनाउँछन् त्यहाँ माथि लगेर गयो। गइसकेपछि म पनि पछि पछि गएँ, यो नातिलाई हातमा समातेर माथि गएँ। जाँदाखेरि अनि त्यो मान्छेले भन्यो कि ल पेपर देऊ, आधार कार्ड बनाउनको, यो स्कुलले लेखेर दिएछ किन नदिएको, सबै त्यो प्रुफ त छ नि भनेर। बाहिरको मान्छे भयो भने जोसँग आधार कार्ड छैन अनि छैन भनेको कुरा चाहिँ कसरी ल्याउनु, बच्चाको भविष्य त खराब गर्नु भएन नि त भनेर उसले चाहिँ यहीँको भाषाले कुरा गर्यो। तर पनि त्यसले भन्छ हुन्न भन्छ। हुन्न भन्दाखेरि दिनै दिन्न भनेर चाहिँ त्यहाँबाट उठेर गइसक्यो। गएपछि फेरि त्यो मान्छे त्यसैको पछि पछि गएर ल तैँले दिनै नै पर्छ, स्कुलले लेखेर दिएछ भने तिमीले किन दिएको छैन, दिन पर्छ भन्छ। म दिन सक्दिनँ, भित्र गएर साहेबसँग कुरा गरेर जाऊ पर्छ। अनि त्यहाँबाट त्यो मान्छे फेरि जुरुक्क उठेर त्यहाँबाट भित्र साहेबसँग गएर कुरा गऱ्यो कि यस्तो यस्तो हो, उसको चाहिँ के अरे बच्चाको भविष्य हो। अनि यत्रो बुढो मान्छेले चाहिँ सम्हालेर त्यो नानी बाबुलाई चाहिँ हेरविचार गरेछन् भने तिनीहरूले सायद नगरेर कसले गर्छ? सानो सानो कुरोको लागि बच्चाको भविष्य चाहिँ बिगार्नु हुँदैन। स्कुलले लेखेर दिएको छ, उसँग प्रुफ भइदिनु भयो, स्कुलबाट किन लेखाएर ल्याउँदियो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ भित्र गएर कुरा गर्दाखेरि ल ठिक छ जाऊ भनेर त्यो मान्छेसँग लगेर जाऊ भनेर भन्यो। अनि त्यही मान्छेले फेरि ल्याएर दिँदाखेरि अनि मैले चाहिँ फेरि बाबुको चाहिँ त्यो सानो नानीको चाहिँ आधार कार्ड बनाउनु चाहिँ सफल भएँ। सबै कुराहरू प्रभुले चाहिँ हामीलाई जुन बाटो हिँड्दा जतातिर हिँड्दा पनि तर परमेश्वर हाम्रो सँगसँगै हुँदो रहेछन्। हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई नदेखेको हो, परमेश्वरले चाहिँ स्वयं नआउँदो रहेछन्। कुनै न कुनै मान्छेलाई त्यहाँ पठाएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ पार गर्दा रहेछन्। मैले परमेश्वरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद गर्छु। मैले त्यो दिन मलाई यति खुसी लाग्यो, म आँखाबाट आँसु निकालेर के गर्ने कसो गर्ने, बोली आउँदैन, भाषा आउँदैन भनेर यति निराश भएकी मान्छे। फेरि मैले सोचेँ कि परमेश्वर चाहिँ हामी सँगसँगै हुनुहुँदो रहेछ, परमेश्वरले चाहिँ यति चाहिँ सहयोग चाहिँ सहायता चाहिँ गर्नुहुँदो रहेछ, तर हाम्रो चाहिँ अटुल चाहिँ मनले चाहिँ हामीले विश्वास गर्नुपर्दो रहेछ भनेर म धेरै खुसी भएँ। यस्तो गवाईहरू मैले धेरै जग्गा चाहिँ मैले धेरै जग्गामा चाहिँ मैले एकान्तमा एकल महिला हिँड्दाखेरि पनि मलाई कसले न कसले सहायता गर्नुको लागि मलाई चाहिँ अगाडि धेरै परमेश्वरले सहायता गर्नुभयो। म परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद गर्छु।
बाँकी आशिष महिमा यीशुको नाममा। हुन्छ परमेश्वरले सहायता गर्नुभयो, हामी पनि धेरै धन्यवाद है। अब आवश्यकता गर्नुभयो हुन्छ। अनि अर्को कसै दबाई छ तपाईँलाई जय मसीह है। आजको यस बिहानको सुन्ने सम्बन्धमा है हामीले स्थानमा जोडाउनु भएको छ होइन। आफ्नो कामदाम छोडेर भए पनि हामीले विदा गरेको छौँ होइन। प्रभुको चरणमा होइन आगामी ईश्वरको लागि धन्यवाद दिनुको लागि। अनि एउटा भजन सङ्ग्रहको 107 को 107 को एक पदमा 1 वर्ष म पढ्न जान्छु। परम प्रभुमा धन्यवाद चढाउँ, किनभने उहाँ भला हुनुहुन्छ, उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। किनभने प्रभुमा धन्यवाद चढाउनुपर्छ होइन। किनभने उहाँ भला हुन्छ, कस्तो परमेश्वर माया गर्नु परमेश्वर हुन्छ होइन। सदा सर्वदा उहाँ रहिरहन्छ होइन। कहिले पनि मेटिँदैन उहाँको बडा होइन माया। जस्तो कि अब संसारमा एउटा गीत छ नि, झ्याप्पै मायालाई नि भने जस्तै है। संसार उहाँले छैन कस्तो प्रेम गर्नुभयो संसारलाई, यस्तो प्रेम गर्नु उहाँले मात्र पुरा पठाउनुभयो होइन। प्रभु येशूलाई पठाउनुभयो। म अस्ति ड्युटीबाट फर्किनु बेला म जहिले पनि म प्रार्थना गरेर आउँछु है। जाने बेला पनि प्रार्थना गर्छु अनि आउने बेला पनि प्रार्थना गर्छु। त्यो बसमा चढेको थियो कि भोल्भो टाइपको बसमा मान्छे धेरै थिए त्यसमा है। त्यसपछि त्यो राम्रो दिन अब सिक्किम यतापट्टि जहाँ पेसेन्जरको लागि त्यो बस खडा थियो। अनि अर्को बस आएर त्यहाँ त्यो लेडिजहरू बस्ने सिटको त्यो खिड्कीमा झ्यालमा यस्तो हानिहाल्यो। अनि झर आउँछ त के हो भनेर सबै मान्छे त्यहाँ तर्सेको नि हो। अनि एकजना दिदी त्यहाँ अगाडि बस्नुभएको छ, ती हातले लागेको होला ग्लास है। जब यस्तो जुर्कै उठेको थियो। अनि मैले सोचेँ ओहो म पनि त्यस्तो उसमा झ्यालमा मलाई पनि त्यस्तो लागेको भए कस्तो हुन्थ्यो होला होइन। त्यसपछि कस्तो लाग्यो है। त्यसपछि त्यहाँ कन्डक्टरहरू, ड्राइभरहरू अनि त्यहाँ ट्राफिक पुलिसहरू त्यहाँ भेला भएको थियो। त्यसपछि तिनीहरूले हामीले अर्को बसमा चढाइदियो। त्यसपछि अर्को बसमा आएर त्यसपछि मारुति स्कुल बसका गर्नु आयो। मैले सोचेँ आज आज के त हो होइन। त्यहाँदेखि एउटा चाड हो है। अब उनीहरू अब संसारका मानिसहरू भन्ने होइन, प्रार्थना नगरी गाडी चलाउँछन् होइन। प्रार्थना नगरी यताउति जान्छन्, उनीहरूको घटना हुन्छ। त्यसरी पुग्यो तपाईँ जोगाउनु रहेछ है। कसैले पनि केही चोट लागेको होइन। सिर्फ त्यो अगाडिपट्टिको झ्याल झ्याल त प्लस त्यो पुरै गइहाल्यो। त्यो झ्यालको ग्लासै पुरा टुक्रा टुक्रा भयो। त्यो कोही सिटमा खस्यो, कोही बाहिरपट्टि खस्यो। पढ्नुको कस्तो माया गर्नुहुन्छ होइन। अन्य जातिहरूलाई पनि जोगाउनु भएको छ है। त्यस्तै अब कुम्भ मेलामा अस्ति कति युपीमा क्या 1500जना लाप्ता भए। कति 49 मान्छेहरू मरिहाले। अनि कतिजना चाहिँ त्यहाँ के भयो होला नि है। अनि त्यसपछि त्यहाँ 5जना त हाम्रो नेपाली नै रहेछ, नेपालबाटै नै आएको रहेछ त्यहाँ होइन। संसारमा त्यस्तो कुम्भ मेलामा होइन ठुला ठुला गङ्गाहरूको डुबेर होइन के छ भने त्यहाँ गएर बरु यो मण्डलीमा होइन उसमा होइन बक्समा उसमा आएको भए त्यो मर्छ नि होइन। बक्समा यो काशीको उसमा ठुला ठुला गङ्गामा डुबेर पाप मुक्त हुन्छ अरे भन्छन्। तर होइन नि, सिर्फ प्रभु येशू जसले विश्वास गर्छ त्यो मुक्ति पाउँछन् होइन। स्वर्गमा बास स्वर्गवास हुन सक्छन्। अनि संसारमा मान्छे मऱ्यो भने स्वर्गवास भयो, त्यो स्वर्गमा गयो भने अर्को साल पनि भेटिन्छ बन्दैन है। तर त्यो होइन, प्रभु येशूको जस्तो चाहिँ नि नाममा छैन ग्रहण गरेको छ
विश्वास गरेको छ होइन मात्रै के गर्नुसक्छ स्वर्गमा मुक्ति पाउन सक्छ। एउटा साधु बाबाले हुन्छ तिनीहरू जति पनि मरेछन् तिनीहरू मोक्ष पाएको थियो। अब तिनीहरू कसरी मोक्ष पायो होइन भोलि यसुको नाममा मात्र तिनीहरूले यो जसले जसले विश्वास गर्छ तिनीहरूले मात्र मुक्ति पाउने हामीले र अब मलाई मलाई काममा लगाउने डिमान्डको सुपरभाइजर दियो हुन त 2nd सिटमा त्यो अर्को एकजना दाजु भाइ थियो दाइ मलाई भोलि 1st सिटमा आउने भन्नुहोस् अनि तपाईँले 2nd सिटमा आउने भन्नुहोस् है सुपरभाइजरले भनेको थिएँ। त्यही कुरा सुपरभाइजर भनेको सर म गजेन्द्र 1st सिटमा आएर बोल्दा है मैले 2nd सिटमा आएको हुन्छ नहीं उसको भी 2nd सिटमा आएको त बोल्न भन्दै अब त्यसपछि सुपरभाइजर गइहाल्यो उनीहरू आफ्नो काममा लाग्यो अनि म 6 बजे अब ड्युटी सुटीको लानु त्यही घटना यस्तो घटना भयो मेरो फोनमा यसोदेखि जो गर्नुहुन्छ त्यही आज यहाँ खडा छ होइन दबाई दिइरहेको छ होइन तपाईँले के हुन्थ्यो होइन म मरिन्छ या कहाँ गइन्छ के भइन्छ होइन तपाईँले जेनसी है दबाईसँग होइन कस्तो दया गरिन्छ हुन्छ सम्वाददाता है मिठो गोलाई उहाँले हाम्रो माझमा गर्नुभयो। हुन्छ धन्यवाद दिन्छु म यतिखेर हाम्रो माझमा दिने भाइ बहिनीहरू आउनु भएको छ है ढिला भए पनि प्रभुको उपस्थितिमा उहाँहरू कति टाढाबाट यहाँसम्म पुग्नुभयो म फेरि पनि हृदयदेखि उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ होला सायद हाम्रो गोलाइको समय सिद्धिएको छ होला है कहिले म तपाईँहरूसँग धेरै एउटा शब्द भन्न चाहन्छु। प्रभुलाई धन्यवाद र विशेष गरी म तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथै पब्लिसहरूलाई पनि किनभने अघिल्लो सन्डेमा चाहिँ मेरो बाबु सकुशल नेपाल पुगेको छ है 4 दिनको लामो यात्रा खै कस्तो भयो होला सामान थुप्रो थियो उसँग तर उसलाई यस्तो साथीहरू मिलेको छ है जुन बसमा सिटमै यति राम्रो साथीहरू मिलेछन्। हुन त उसले हामीले यहाँबाट उसलाई खानेकुरा पकाएर पठाइदिएको थियौँ है बाँडेछ सेयर गरेछ अनि साथीहरू एकदमै खुसी भएछन्। बाटोमा एकदमै बर्डरमा पनि उसलाई चाहिँ एकदमै हेल्प गरेछ त्यो साथीहरूले अनि उसलाई केही पनि एकदमै राम्रोसँग घर चाहिँ पुगेछ। अनि चाहिँ साँझ हामीलाई कल गरेको थियो उसले त्यहाँबाट भिडियो कल गरेको थियो नाइ पापा एकदमै सकुशल पुग्यौँ भनेर भनेको थियो। अनि अरू काँचको सामानहरू पनि के यस्तो हालिदिएर पठाएको हामीले छोरीको लागि त त्यो पनि पुग्छ पुग्दैन खै के हुन्छ पुग्छ होला भनेको थिएँ। जेस प्रभुलाई धन्यवाद सकुशल पुगेको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद है अहिले फर्स्ट बलले कुरा गर्नुभयो जस्तै भाइले कुरा गर्नुभयो बहिनीले कुरा गर्नुभयो यस्तै घटनाहरू थुप्रो यति बेला संसारभरि नै घटिरहेको छ। त्योभन्दा पनि अब यो बेङ्गलोर कर्नाटक तपाईँको साउथमा त हामीहरूलाई ल्याङ्ग्वेजको प्रब्लम छ होइन धेरै अप्ठ्यारो छ ट्राभल गर्ने युवाहरू होइन जवान भाइ बहिनीहरू एकदमै गाह्रो छ किनभने म पनि डेलिभरी गर्छु म पनि थुप्रो डेलिभरी हिँड्छु होइन यहाँको मान्छेहरू डाइरेक्ट ठोक्नै आउँछ मलाई त यहीँको यस्तो मान्छ त्यही भएर म त त्यति गर्दैन त धेरै मान्छेहरू यस्तो देखिरहेको छु मैले। म हिजो त्यो राममूर्ति सिङ्गलदेखि उतापट्टि एउटा रोडमा म जाँदै गर्दा एकजना बाइकले अर्को स्कुटीवालालाई ठोकेर मान्छे त कुटुकै भयो है त मर्न चाहिँ मरिहाल्यो होला एकदमै उसको पुरैबाट ब्लड भएर अनि त्यसपछि हस्पिटल लग्यो लग्न त उसलाई फेरि उसको गल्ती थिएन है। हुनसक्छ हामी तिमीहरू बाहिरको मान्छेलाई त एकदमै गाह्रो छ र पनि प्रभु हुनुहुन्छ होइन हामी प्रार्थना गरौँ प्रार्थना गरेर तपाईँहरू ट्राभल गर्दा हरेक कुराहरू गर्दा प्रभुलाई सम्झिनुहोस् प्रभुले अवश्य नै तपाईँ हामीलाई एक ठाउँमा लानुहुन्छ। हुन्छ समयको एकदमै पाबन्दी छ परमेश्वरलाई धन्यवाद है। आज पहिलो हप्ता हुनसक्छ प्रभु भोज पनि होला प्रभुको पवित्र वचनको भोजन खान पनि हामी एकदमै आवश्यकता छ है। धेरै छोराछोरीहरू धेरै भाइ बहिनीहरू आउनु पर्ने थियो तर उहाँहरू यो समयमा आउन सक्नु भएन है। फेरि पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद है किनभने आउँदो दिनमा उहाँहरूलाई परमेश्वरले ल्याउनु होला जे जति आउनु भएको छ तपाईँहरू टाढा नजिकबाट हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद है। अझै ठुलो मानिसहरू छोरा साथीहरू आउनु पर्ने थियो आउनु भएन होला। हुन्छ हामी यो समय यतिखेर हामी पवित्र वचन है
परमेश्वरको वचन भोजन हामी पाउनेछौँ र हाम्रो माझमा पास्टर मेथ्यु आएर है पवित्र वचन उहाँले छाड्नुहुन्छ। हुन्छ, उहाँको लागि हामी जोरदार ताली बजाउँछौँ। पास्टर मेथ्यु, प्रभु की महिमा हो। Firstly, I'm so glad that I have a voice to speak today. मैं सबसे पहले बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे पास आवाज़ है परमेश्वर का वचन बांटने के लिए। Because morning I got up, I lost my voice again and I was whispering and I was just sitting over there and praying, and Matthew was preparing another message. And I was saying, Lord, if this is what you are shutting me, then it's fine. But if it's from the evil one, I wanted to go away right now and I want to preach what God has given me, and it started opening. और आज सुबह जब मैं उठी तो मेरी आवाज़ फिर से जा चुकी थी और मैं कुछ भी बोल नहीं सकती थी। और जब हम यहाँ पे आए और फिर क्योंकि इन्होंने वचन तैयार किया था, मैंने नहीं किया था, तो फिर जब आवाज़ चली गई तो फिर मैं यहाँ बैठ के वचन तैयार करने लगा कि आज के लिए कुछ बोलने के लिए। लेकिन उस समय ये प्रार्थना किया कि प्रभु यदि ये आपकी तरफ से है तो ठीक है, लेकिन नहीं तो फिर मैं अभी इसी समय ये आवाज़ मुझे वापस मिलना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर आपने दिया है वो आज मुझे बांटना है। So praise the Lord. It's so good to sit in the presence of God and know how good He is always. और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना और यह समझना कि वो कितना भला है। Let's turn our Bibles to John chapter 14 verses 16 to 17. और यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम आएंगे और उसका 14वां अध्याय 14 और उसका 16 से 16 to 17. 17 तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 और उसका 16 और 17। And I will pray to the Father, and He will give you another helper, and He may abide with you forever, the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because neither they see Him nor know Him, but you know Him, for He dwells in you and will be in you. और यहाँ 16 और 17 पद में इस प्रकार कहता है, यूहन्ना 14 के 16 और 17 में, मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। Okay, so it's very important to firstly understand this word. Okay. सबसे पहले जरूरी है कि हम इस वचन को समझें ये क्या कहता है। See, so many times people are confused between Father, Son and Holy Spirit. कई बार लोग जो हैं इस बात में थोड़ा से कंफ्यूज हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये तीनों क्या है, क्या अंतर है। So many times, they say there are three gods. कई बार वो कहते हैं कि तीन परमेश्वर है, तीन ईश्वर है, and then it is in one God. और फिर वो तीन जो है, तीन ईश्वर जो है वो एक ईश्वर में है और वो समझते नहीं है। But in a simple way to understand, can you see this point? लेकिन इसे समझने के लिए आप इसे समझे कि ये देखिए इनके हाथ में एक कॉइन है। Most of the cricket match, anything, they toss a coin, right? They say head or tails. और correct? जब हम क्रिकेट मैच शुरू होता है तो उस समय कौन बैटिंग करेगा, बॉलिंग करेगा, तो उस समय कॉइन को उछालते हैं और देखते हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा। Correct. So this is a coin. You can see there is a head, there is a tail, and you can see a center part that joins both of them. Correct. और ये जो कॉइन में आप देखिए कि एक तरफ जो है वो बोलते हैं कि हेड है, दूसरी तरफ दूसरा बात छपा हुआ है वो टेल है, और उसके बीच में जो मोटा सा है वो हम उसको सेंटर भाग बोलते हैं, जो कि इसकी मोटाई है, जो हम बोलते हैं। What do you call this together? ये तीन चीजें मिलाकर जो है एक कॉइन बना हुआ है। इसको आप
क्या बोलते हैं? You'll call it coin only, right? आप इसको कॉइन ही बोलते हैं। Even if I slice it, still it will have a head, a tail and a center part. इसको बीच में से अगर काट भी दिया जाए ऐसे, तो भी जो है उसका एक भाग इस तरफ रहेगा हेड, दूसरी तरफ इस तरफ रहेगा टेल, और बीच में कुछ ना कुछ रहेगा वो उसका सेंटर भाग। Now just because you can't see the back doesn't mean that the back is not there for this coin. आप इसका पीछे का भाग अभी नहीं देख सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे का भाग है ही नहीं। Is it like that? ऐसा See, है। God is like this, okay? एक उदाहरण के लिए समझने के लिए, परमेश्वर भी इसी प्रकार से है। One is the face of God, that is Jesus Christ. एक तरफ जो है, जो हेड, जो उसका परमेश्वर का मुख है, जो हम देख सकते हैं, वो है प्रभु यीशु मसीह। Okay? Then there is Father who is in heaven. You are not seeing, but you know he is at the back. और जो एक परमेश्वर जो है, पिता जो है, वो स्वर्ग में विराजमान है, जिसे हम कोई नहीं देख सकता, वो है इसका एक दूसरा भाग। And the one that unites both is the Holy Spirit. और दोनों के बीच में जो उसको एक मिलाप करवाता है, बीच का भाग जो है, वो है पवित्र आत्मा। So these are three persons in one God. तो परमेश्वर में भी ये तीन भाग हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, लेकिन तीनों मिला के एक परमेश्वर हमारा बनता है। We have only one God. हमारा but सिर्फ there एक ही are परमेश्वर three है, persons. लेकिन उसमें तीन व्यक्तित्व है, तीन उसके भाग हैं। So you cannot mix them together. आप जो है उसको जो है ऐसे वैसे नहीं उसको मिक्स कर सकते। So that is why now Jesus did not become, some people have this weird theory where they say as soon as Jesus resurrected, he became Pavitra Atma, or he became Holy Spirit and started dividing himself into pieces and coming on people. और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो वो पवित्र आत्मा में परिवर्तित हो गया, और उसके बाद वो जो है वो पवित्र आत्मा लोगों को ऐसे बांटने लगा। नहीं, That is not the truth. Okay? ऐसी बात नहीं है। Holy Spirit was there from the beginning, and he is promised by Jesus to be given to all people. और पवित्र आत्मा जो है वो आदि से, जब से शुरुआत से पिता और पुत्र के साथ है, तब से है, और प्रभु यीशु मसीह ने ये वायदा किया है कि जो उस पर विश्वास करते हैं उन्हें मैं पवित्र आत्मा दूंगा। Okay, now coming to the promise of God. Jesus said, I will pray to the Father and he will give you another helper. So this is another person. It is not Father, it is not Jesus, it's another person. He will give you a helper who will abide with you forever. और यहाँ पे यीशु मसीह कह रहा है कि मैं पिता से, यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करेगा, विनती करूंगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। मतलब एक दूसरा व्यक्तित्व, परमेश्वर का एक तीसरा व्यक्तित्व जो कि पवित्र आत्मा है, वो एक सहायक है, वो सहायक देगा और वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। It is not about you here. So many times we think based on us the Holy Spirit will come. No. Holy Spirit is given to you by the Father, and He is there with you forever whether you like it or not. और पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है कि हमारे कारण से, हम प्रार्थना करने से, हमारे अच्छे जीवन के कारण जो है हमारे जीवन में आता है। नहीं, परमेश्वर हमें वो पवित्र आत्मा देता है, और वो पवित्र आत्मा हमारे साथ जीवन पर्यंत तक सर्वदा हमारे साथ रहता है। He is the guaranteed deposit with which you will enter heaven. Without Holy Spirit, you are not going to enter heaven. और पवित्र आत्मा जो है वो निधि हमारे जीवन में दी गई है, जिसके कारण ही हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। उसके बगैर, पवित्र आत्मा अगर जीवन में नहीं है, उसके बगैर हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। But the amount or the illumination of the Holy Spirit will change person to person. लेकिन पवित्र आत्मा का वो भाग जो है या फिर कार्य किस व्यक्ति में कितना ज़्यादा है, किसी में कम है, वो व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग होता है। It depends on the person how much he allows the Holy Spirit to work in him. और ये एक व्यक्ति पे निर्भर करता है कि वो व्यक्ति पवित्र आत्मा को जो कि उसके जीवन में दिया गया है, उसको कितना काम करने के लिए अनुमति देता है। And now look at the next word Jesus said. He said, the world cannot know him, the world does not see him,
but you know him. How do the disciples know Holy Spirit? और यहाँ पे यीशु मसीह कहता है कि ये जो सत्य का आत्मा है उसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता और वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है, लेकिन तुम उसे जानते हो। अब ये चेले लोग इस पवित्र आत्मा को कैसे जानते थे? You know why? Because the world is full of non-truthness. There's no truth in the earth. क्योंकि ये जो संसार है, संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। संसार में सब कुछ जो है मिलावटी है, सब कुछ झूठा है। Jesus said, I am the way, the truth and the life. यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। So if you want the spirit of truth, you have to see in Christ. तो अगर आपको सत्य का आत्मा अगर जानना है, देखना है, तो आपको यीशु मसीह की तरफ देखना होगा। And that is why when you know Christ, then automatically you know the Spirit. और इसीलिए जब आप यीशु मसीह को जानो तो आप पवित्र आत्मा को भी जानोगे। But there is an interesting word that Jesus said here. He dwells with you, but will be in you soon. और यहाँ पे एक बहुत ही अलग बात यीशु मसीह कहता है कि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मतलब वो तुम्हारे साथ रहता है, मतलब वो प्रेजेंट टेंस में है। तुम में होगा का क्या मतलब है? आगे फ्यूचर टेंस में है, मतलब कि आएगा, आके तुम्हारे अंदर रहेगा। So right now is the Holy Spirit inside of them? तो अभी जो है क्या पवित्र आत्मा उनके अंदर है इस समय? The Holy Spirit only is dwelling with them. Like I am with you now, right? We all are walking. I am with you, Matthew is with me. But is Matthew inside of me? So इस समय जो है, जैसे मैं जो हूँ वो आप लोगों के साथ हूँ, मैं आप लोगों के अंदर नहीं हूँ, राइट? उसी प्रकार से पवित्र आत्मा जो है उस समय, जिस समय ये बात कही जा रही है, उस समय पवित्र आत्मा उनके साथ जरूर था, लेकिन यीशु मसीह ने सिर्फ अभी वायदा दिया है कि वो तुम में होगा। See, this is the promise of God. Whenever anyone is led to the cross, the Holy Spirit is with the person. जब एक व्यक्ति क्रूस की तरफ उसे बुलाया जाता है या फिर जो उद्धार की तरफ व्यक्ति जो है बढ़ता है, उस समय पवित्र आत्मा जो है उसके साथ होता है, चलता है। I heard that Vishal wants to take baptism. Right now, the Holy Spirit is with you, Vishal. विशाल ने जैसे बपतिस्मा लेने का एक निर्णय लिया है, इस समय में पवित्र आत्मा जो है आपके साथ है। That is why you can believe the cross. That is why you know cross is correct, Jesus is correct, and I need to follow him. क्योंकि उस साथ होने के कारण ही आप ये निर्णय ले पाते हो कि यीशु मसीह ही सच्चा प्रभु है, प्रभु ने क्रूस पे बलिदान दिया, मुझे उस पे विश्वास करना है, उसी के द्वारा उद्धार है, उसी के कारण मुझे बपतिस्मा लेना। ये सब जो विश्वास आपके अंदर आता है वो इसीलिए आता है कि पवित्र आत्मा आपके साथ है। But he is not inside of you. लेकिन अभी भी पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है। But the sad thing is, many people over here, seated here also, are just walking with the Spirit. They are not inside of the Spirit. लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पे भी हैं अभी पवित्र आत्मा के साथ चल रहे हैं या फिर पवित्र आत्मा उनके साथ चल रहा है, और इसी कारण से वो आज कलीसिया में भी आए हैं, नहीं तो आप कहीं बाहर होते। पवित्र आत्मा आपको मोटिवेट करता है कि सुबह उठो, चर्च में आना है, वचन सुनना है, बाइबल पढ़ना है, पवित्र आत्मा आपके साथ है, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा आपके अंदर तुम में होगा, जो बात कही गई है वो अभी भी नहीं है कुछ लोगों में। So because of that only you don't have that spirit-filled life. और उस कारण से जो है आत्मा से भरा हुआ जीवन जो है कुछ लोगों का नहीं है। You know what is the first sign of a person who has the Holy Spirit inside of him? पहला चिन्ह उस व्यक्ति का जिसके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा है। You know what happens? The same chapter, John 14:26. Can you read? इसके 26वें पद में आके पहला चिन्ह, अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो क्या चिन्ह है? But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all
all the things I have said to you. और यहाँ है कि वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। Let's pause for a minute. So many times we think Holy Spirit comes and start preaching. कई बार हम सोचते हैं कि पवित्र आत्मा आते ही मैं प्रचार करना शुरू कर दूंगा। I will start dancing, I will sing like David, I will do everything. Why? What performance? Everyone will see. पर पवित्र आत्मा आते ही मैं जो है डांस करना शुरू कर दूंगा, गाना गाना शुरू कर दूंगा, बड़े बड़े काम करना शुरू कर दूंगा। This is what we all think. Am I right or wrong? हम यही सोचते हैं ना, पवित्र आत्मा जीवन में आते ही हम कुछ बड़ा काम करना शुरू कर देंगे। But what is written here? What did Jesus say? लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ क्या कहा है Jesus said, He will teach you. कि वो तुम्हें सब सिखाएगा। First evidence of the Holy Spirit in you is the Holy Spirit will begin to teach you God's word. पहला चिन्ह पवित्र आत्मा आपके अंदर आने का ये है कि वो आपको परमेश्वर का वचन सिखाने समझाना शुरू कर देगा। You don't need to go to any big colleges or sit under big pastors or sit in big Bible studies. If the Holy Spirit is in you, you will open the Word of God and it will begin to teach you. पवित्र आत्मा आपके जब अंदर है, आपको वचन समझने के लिए बड़े इंस्टीट्यूट में, बड़े बाइबल कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बाइबल खोलेंगे, पढ़ेंगे, वो आपको समझाना शुरू करेगा कि एक एक पद का मतलब क्या है, वो आपके जीवन से आपको समझाना शुरू कर देगा। And whatever you read, it will be stored in your heart, and when your life action comes, it will remind you the word of God says. और वो जो भी सिखाएगा वो आपके जीवन में ऐसा भर जाएगा कि जब आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे उस समय पे किसी भी परिस्थिति में वो आपको दोबारा से याद दिलाएगा कि वचन तो ऐसा कहता है, तुम क्या कर रहे हो। वो हर चीज को वचन के साथ तुलना करने के लिए आपको मजबूर कर देगा कि आपके जीवन में आप जो भी काम कर रहे हो वो वचन के हिसाब से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। If this is not happening, then you are only walking with the Spirit. Your spirit is not inside of you. और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो आपके साथ सिर्फ पवित्र आत्मा चल रहा है, गाइड कर रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा अभी भी आपके जीवन के अंदर काम नहीं कर रहा है। Because you have not opened the door of your heart. क्योंकि अभी भी आपने अपने हृदय के दरवाजे को उसके लिए नहीं खोला है। Our God is not a God who will come and possess you. No. हमारा जो परमेश्वर है वो ऐसा नहीं है जो कि आपकी अनुमति के बगैर आपके जीवन को कब्जा कर ले। He waits. What did Jesus say? I knock at the door of the heart. यीशु मसीह ने क्या कहा? देखो मैं द्वार में खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। वेट कर रहा है वो कि आप दरवाजा खोलो। You have to open. And the minute you open, when you read scriptures, it will begin to talk to you. और जब आप दरवाजा खोलोगे तो वो अंदर आएगा और तब वो जो है वचन जो है आपको समझाना शुरू करेगा। And then you will be automatically teaching others. और तब जो है आप अपने आप जो है उस वचन को दूसरों को सिखाना शुरू कर दो। You look at the 12 disciples who was very great educationist over there. आप जो 12 चेलों को भी देखो कि उसमें से कौन था जो कि बहुत पढ़ा लिखा था या फिर बहुत बड़े सेमिनरी में गया या फिर कुछ ऐसा नॉलेजेबल पर्सन था। They were fishermen. वो सब मछुआरे थे। But when they read the word, if they could expound it so much, it's only and only because of the Holy Spirit they allowed to work in their lives. लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह के वचन को सुना, सीखा, वचन को तोरा को पढ़ा, उससे जो ज्ञान, जो परमेश्वर का जो बुद्धि उनके अंदर आए, उसके कारण से जो है उन्होंने कितने जगह पे परमेश्वर का प्रचार किया और आज भी हम उनके वचनों को पढ़ते हैं। Today I hear people say I can't read more than 5 verses, I'll fall asleep. आज मैं कई लोगों से ये सुनता हूँ कि मैं 5 पदों से ज़्यादा पढ़ नहीं पाती हूँ बाइबल को, उस समय मुझे नींद आ जाती है। Or they will say I am reading, I can't understand anything. लेकिन या मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लिखा क्या है। The problem is you don't have the Holy Spirit. यहाँ पे बात यह है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है। Today the Lord is asking you, say
Lord, I'm sorry for all the ways I resisted the Holy Spirit so long. Please come inside of me. आज And I'm आप- telling you, today onwards, there will be a change in your life. और आज आपको ये प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु, मैंने अभी तक पवित्र आत्मा को अनुमति नहीं दी है अपने दिल के दरवाजे के अंदर आने के लिए, और आज मैं चाहती हूँ कि वो मेरे अंदर आ जाए और मेरे जीवन को बदल दे। John chapter 15 verses 26. यूहन्ना 15 के 26 में अगर हम देखें, When the helper comes, whom I shall send in the Father's name, he will testify of me. परंतु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही देगा। So next sign that the Holy Spirit is there with you is that you will testify about Jesus, not about yourself. और दूसरा चिन्ह कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, उसका ये है कि आप जो है आपके जीवन से प्रभु की गवाही निकलेगी। आपके जीवन से आपके काम नहीं, आपका जो है बोस्टिंग नहीं, प्रभु की गवाही निकलेगी। Whatever happens, you know that it is God's hand that is working there. जो भी होगा आपके जीवन में, आप जानोगे कि उस सभी में प्रभु का हाथ है। And that testimony will carry value. और वो जो गवाही है, वो गवाही में जो है बहुत ही मूल्य है। And that time the whole people can transform. Without this, if you go tell a testimony, they will just hear and say he's gone mad. उसके बगैर अगर आप जाके अपनी गवाही बोलें तो लोग बोलेंगे कि आप पागल हो, या फिर उनको समझ में नहीं आएगा, या फिर वो बोलेंगे ये बोलता ये है, उसका जीवन कुछ और है। प्रभु की गवाही अंदर से जो निकलती है जब आपका जीवन बदल जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा। John 16:13. 16 के 13 में Again, second part says, he will speak and he will tell you of the things to come. और इसके दूसरे भाग में कि वो परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। The whole Bible has prophecies. पूरे वचन में जो है भविष्यवाणियां लिखी गई है बाइबल के अंदर, And we all know it is not written straightforward. और हम सभी जानते हैं कि सारी भविष्यवाणियां जो है सीधे सीधे तरीके से समझने के It लिए is नहीं not लिखी गई written है। April 2025 this will happen. No. उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि एक पर्टिकुलर डेट में ऐसा होगा और उसके साथ ऐसा होगा, सीधा सीधा कुछ नहीं लिखा है। It is written in such a way that only the person with the Holy Spirit will understand. वो इस तरीके से लिखा गया है कि जो व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है सिर्फ वो समझे। You see, Daniel also was one of the wisest man on earth. दानिएल भी जो था वो भूमि में बहुत ज्यादा एक बुद्धिमान व्यक्ति था, Right? But when God showed him some visions, he didn't understand. लेकिन परमेश्वर ने जब उसको कुछ दर्शन दिया तो वो समझ नहीं पाया। And he would sit fasting and saying, Lord, teach me what this vision is. और वो जो है उपवास में बैठा और परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु मुझे बता कि इसका मतलब क्या है। And that time God sends, the Gabriel to make him understand what is all these figures all about. और उस समय परमेश्वर ने अपने दूत गब्रिएल को भेजा उसको समझाने के लिए कि ये जो सारे दर्शन उसने देखे उसका मतलब क्या है। God sent His Spirit upon Daniel so that Daniel understands. परमेश्वर ने अपना आत्मा दानिएल के अंदर भेजा ताकि दानिएल समझे कि वो दर्शन का मतलब क्या है। And there are some things that were sealed for Daniel and said, Daniel, you will not understand this with all your brains. You are not going to understand. It is for future generation. और कुछ बातें तो ऐसी भी हैं जो कि दानिएल को बताई भी नहीं गई और लिखा गया है कि उसने उसको सील कर दिया, ताला लगा दिया, कहा कि ये तुम्हें समझने के लिए नहीं है, ये आगे वाली पीढ़ी को समझने के लिए है। And today we are sitting here with the book of Daniel, Revelation and everything, and simple people reading it can understand. और आज जो है हम दानिएल की पुस्तक और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लेके बैठते हैं, पढ़ते हैं, और लोग जो है जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं वो साधारण लोग उसको समझ पाते हैं। How is it possible? It's only possible because of the Holy Spirit. और ये कैसे संभव है? और ये सिर्फ संभव है पवित्र आत्मा के द्वारा। And if this is not happening in you, God is again telling, turn back, repent, ask for the Holy Spirit. और यदि आपके जीवन में ये नहीं हो रहा है, ये वो समय है कि परमेश्वर के सामने मन फिरा के दोबारा पश्चाताप करके पवित्र आत्मा के लिए अपने दिल के दरवाजे को खोलो कि वो आपके अंदर आ जाए। Next,
Acts chapter 1 verses 8. और प्रेरितों के काम और उसका 1 और उसका 8वां पद। By the way, when I'm saying this, do you know that John chapter 14 onwards, Jesus is heading towards the cross. These are the last words of Jesus. और यूहन्ना का जो 14वां अध्याय है उसके बाद जो भी अध्याय है वहाँ पे यीशु मसीह बेसिकली क्रूस की तरफ बढ़ रहा है और ये उसके आखिरी शब्द। Before Gethsemane, he is speaking all these to the disciples. वो गत्सेमने के बाग में जहाँ उसे पकड़वाया गया उसमें पहुँचने से पहले ये कुछ आखिरी शब्द हैं जो कि यीशु अपने चेलों से बोल रहा है। Imagine if you are in the ventilator ICU and doctor says in 2 hours you are going to die. Will you ask in the house is idli and chamanti made? Will you ask this question? आप जब सोचिए कि जब आप अगर आपको पता है कि आप मरने वाले हो, वेंटिलेटर में हो, डॉक्टर ने बोला है कि 2 घंटे में आप मर जाओगे, वो आखिरी क्षणों में आप अपने जब जबान से कुछ बोलोगे तो आप क्या फालतू की बातें बोलोगे कि घर में इडली बनी है कि नहीं, या फिर ना ऐसा कुछ, या फिर आप जिंदगी के सबसे बहुमूल्य सबसे इम्पोर्टेंट चीजें उस आखिरी 2 घंटे में बोलना चाहोगे। Last you may want to tell about the important things of the family, right? Take care of this brother or take care of the sister, or this money is kept in that bank, you can take it, you should share it in this way, or these are the mistakes I did in life, please don't do this, you all go forward like this. These were the things you will tell, right? ये 2 घंटे में आप ये सब अपने परिवार वालों से बोलना चाहोगे कि हाँ ये वाला बैंक अकाउंट में इतना पैसा है, इसका पासवर्ड क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ें, या फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में ये गलतियाँ की वो तुम मत दोहराना, और ये है जीवन का सत्य, ये मैंने समझा है तुम करना। ये आखिरी घंटों में एक व्यक्ति यही इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें बात करेगा। Now in a few hours Jesus is going to die. और यहाँ पे भी ये यूहन्ना के 14वें अध्याय के बाद कुछ घंटों में उसे पकड़वाया जाना है और उसके बाद कुछ समय में उसको क्रूस पे लटकाया जाना, और ये उसको पता है। And at that moment, he is not sitting and telling, the sheep or, lost coin or anything. He is saying Holy Spirit. और इस समय में वो बाकी कुछ भी वृत्तांत के बारे में जो यीशु मसीह जो पहले के समय में जब उसने अपना जो मिशनरी शुरू किया, तो जब वो एक कहानियाँ बताता था और उसमें से समझाता था, वो सारी चीज़ें नहीं बता रहा है, वो सिर्फ पवित्र आत्मा के बारे में इन आखिरी घंटों में बता रहा है। And even after resurrection, Acts chapter 1 verses 8, again he is talking about the Holy Spirit. और प्रेरितों के काम 1 के 8 में पुनरुत्थान के बाद इमीडिएटली सबसे पहले अगेन वो इधर उधर की बातें नहीं कर रहा है, वो पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा है। So did you understand the importance of this? तो आप समझ रहे हैं ये पवित्र आत्मा का ये जो टॉपिक है ये कितना इम्पोर्टेंट है। And that is why Satan hates to speak about this. और इसी कारण से जो है शैतान नहीं चाहता है कि पवित्र आत्मा के बारे में, उसके जीवन में आने के उस रहस्य के बारे में चर्चों में बताया जाए, लोग उस बात को समझें। You tell me a person who doesn't want to sleep also will sleep when he hears about the Holy Spirit. जो व्यक्ति अगर सोना नहीं चाहता है लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में बात करो, उस व्यक्ति को बहुत जल्दी नींद आएगी। Many churches today people go saying, in my house I don't get sleep, but I come to church, so much of peace is there, I sleep. It is peace or something else? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि घर में मुझे नींद नहीं आती, लेकिन चर्च में इतनी शांति है कि मुझे चर्च में जब प्रचार शुरू होता है तब उबासी आना शुरू हो जाता है, तब मुझे नींद आना शुरू होता है। Why? क्यों? Because the spirit is not working. क्योंकि पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा है। It is only your flesh that is desiring. ये सिर्फ आपका जो शरीर है वो बस चाह कर रहा है कि हाँ आके यहाँ बैठे। When the spirit is inside you, this will be the first thing you want to hear. लेकिन जब आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है तो ये पहली चीज है जो आप सीखना चाहोगे कलीसिया में। Acts chapter 1 verses 8, Jesus said, "But you shall receive the Holy Spirit; it will come upon you, and you will be my witnesses." और यहाँ पे है कि परंतु जब समय पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम, सारी यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। So Holy Spirit is a spirit of power. तो पवित्र आत्मा जो है वो सामर्थ की आत्मा है। You see in Genesis 1:1, the Spirit hovered over the waters and creation happened. उत्पत्ति 1:1 में आत्मा जो है वो मंडरा रहा था भूमि के ऊपर,
और उस समय परमेश्वर के साथ पवित्र आत्मा इस सृष्टि के निर्माण में साथ में काम कर He is रहा a था। creator. He is a creator God. पवित्र आत्मा, ये परमेश्वर जो है ये रचना करने वाला, सृष्टि करता है, रचना करता है। And in you, what He is doing, you know, your old self is dead, and He is creating a new being in you. और ये आपके अंदर भी जो है वो एक पुराने मनुष्यत्व को मार रहा है और नए मनुष्यत्व की रचना कर रहा है दिन प्रतिदिन। That is why Paul said, if anyone is in Christ, he is a new creation. और इसीलिए पौलुस ने कहा कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। How can you become a new creation? Only when the Holy Spirit comes and starts working inside और आप you. एक नई सृष्टि कैसे बन सकते हो? तभी बन सकते हो जब पवित्र आत्मा, जो कि सृष्टि करने का आत्मा है, वो आपके जीवन में आके नया सृष्टि करना He शुरू कर has दे the power to do it. और उसके पास वो सामर्थ है उस चीज को करने के लिए। Matthew 10 verses 1. मत्ती 10:1 में Whoever God gave the promise, He said, you will go and you will deliver people from the evil spirits and all kinds of sicknesses. और उसमें क्या कि जब आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा तो तुम जाओगे और तुम ये सारे भूत प्रेत, ये दुष्ट आत्मा को निकालोगे और तुम लोग जो है जो लोगों को चंगाई करोगे। Can you heal anybody? क्या तुम किसी को चंगा कर सकते हो? The greatest doctor cannot heal anybody. सबसे बड़ा डॉक्टर भी जो है इस दुनिया का, वो किसी को वो चंगाई नहीं दे सकता। He can only try. वो सिर्फ कोशिश कर सकता है दवाइयों के द्वारा ट्रीट करने के लिए। With medicines, with operation, he can only try. He can heal nobody. वो जो है सिर्फ मेडिसिन के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा अपनी कोशिश कर सकता है, लेकिन वो किसी को चंगाई प्रदान नहीं कर सकता। My Jesus with the word can heal, and I am a witness of this. और मेरा प्रभु जो है यीशु मसीह जो है वो अपने शब्द के द्वारा चंगाई को प्रदान कर सकता है और मैं उसका एक जीवित उदाहरण हूँ। He can cast out spirit by the word. वो जो है अपने शब्द के द्वारा दुष्टात्माओं को निकाल सकता है। He can heal a person by a sight. वो अपनी आंखों की दृष्टि से एक व्यक्ति को चंगा कर सकता है। And he can draw people and tell them they are sinners and bring them back to the kingdom of और God. वो है लोगों के मुंह में देखकर ये भी कह सकता है कि तुम पापी हो और मन फिरा के यीशु परमेश्वर की तरफ दोबारा आ जाओ। Now, if Jesus was alive, he would have been restricted to Middle East. और यदि यीशु मसीह आज जिंदा होता, शरीर में होता, तो वो शायद आज भी इजराइल या फिर उस एरिया में होता। Everyone in the world cannot access it. और शायद हम में से लोग जो आज इंडिया में हैं और साउथ इंडिया में हैं, शायद हम लोग जो है हमेशा जो है यीशु मसीह के पास नहीं जा सकते क्योंकि वो मिडिल ईस्ट में है। So that is why Jesus said, it's good I am going. और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि ये तो अच्छी बात है कि मैं वापस जा रहा हूँ। You know why? When he goes, the Spirit of God comes upon all the people who serve him. और क्योंकि अगर वो जाएगा तभी वो सहायक को जो है वहां से भेज पाएगा और वो सहायक आज हम सभी के साथ है। And the scripture says, you will do things what Christ did and even greater. और वचन कहता है कि वो काम जो मैंने किए, प्रभु ने किए, वो उससे भी ज्यादा तुम करोगे। You will raise people from the dead. तुम जो है मुर्दों को मृत्यु में से निकालोगे। You will heal people. तुम जो है लोगों को चंगाई के लिए काम करोगे। You will save the demon possessed. तुम दुष्ट आत्माओं से लोगों को निकालोगे। You will testify the word of God. और तुम जो है परमेश्वर के वचन की गवाही दोगे। And you yourself will be a testimony. और तुम्हारा जीवन जो है वो एक गवाही होगा। How? कैसे? Because you having the Holy Spirit, you become the mini Jesus on earth. और क्योंकि तुम जो हो, तुम्हारे अंदर जब पवित्र आत्मा आ जाता है तो तुम वो यीशु मसीह जो है उसको इस संसार के सामने दर्शाते हो। When people see you, they should be able to see Christ. जब लोग आपको देखें तो वो आपको नहीं, वो यीशु मसीह को देखना चाहिए। They should see less of Jinsi and more of Christ. और वो जो है मेरे को कम, यीशु मसीह को ज्यादा देखना चाहिए मेरे इस जीवन से। And it all depends how much you are yielding to the Holy Spirit. और ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा पवित्र आत्मा के सम्मुख अपने आप को समर्पित कर देते हो। You know what is the problem? Romans 8:26 to 27. और प्रेरितों के काम 8 और उसका 26 और 27 में जो आप एक प्रश्न है या फिर
जो दिक्कत है वो बताई जा रही है। रोमियो 8:26 और 27। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना है, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। You know what is the problem? We keep Holy Spirit outside and we begin to pray. हमारा दिक्कत यह है कि हम जो है पवित्र आत्मा को एक तरफ रख लेते हैं और फिर हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं। We'll use all our language, you'll use all our buddhi, everything, and we'll try to speak, nothing will happen. और हम जो है अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से प्रार्थना करना शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि उसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। And then we will decide, everyone is preaching about Holy Spirit. Okay, come Holy Spirit, come. And then when the Holy Spirit comes, we are treating him like some translator. और जब लोग प्रचार करते हैं पवित्र आत्मा के बारे में, तो हम भी कहते हो कि पवित्र आत्मा आओ, मेरे जीवन में आओ, लेकिन पवित्र आत्मा को जो है हम अपने जीवन में एक ट्रांसलेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। You will say like, I have to talk to the Father, but Father can't understand my language, so please come mediate, talk between me and the Father. और हम कहते हैं कि मुझे प्रार्थना करनी है परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर मेरी बात सीधे नहीं सुनेगा, तो पवित्र आत्मा तुम आकर जो है मेरे लिए एक मध्यस्थता करो परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए। How many of us insult the Holy Spirit like this? हम कितने बार जो है पवित्र आत्मा का इंसल्ट करते हैं, पवित्र आत्मा को एक दूसरे दर्जे का एक ओहदा देकर। He is God himself and you are telling you come and mediate between me and the Father, then your work is done, please move. क्योंकि हम जो है अपने जीवन में प्रार्थना करते समय पवित्र आत्मा कहते हैं कि तुम आकर पवित्र आत्मा परमेश्वर और मेरे बीच में एक मध्यस्थता करो, उतना ही तुम्हारा काम है, उसके बाद तुम चले जाओ, बाकी मैं देख लेता हूँ। And Holy Spirit is not going to shake you. He is for you, so he will definitely intercede for you, but he will definitely be sad. और पवित्र आत्मा जो है वो जो है डेफिनेटली एक मध्यस्थता करता है, लेकिन वो दुखी भी होता है कि ये लोग जो हैं वो मेरा कितना निरादर करते हैं, मुझे एक ऐसा दर्जा देते हैं जो कि बहुत ही नीचे का दर्जा देते हैं, मुझे परमेश्वर के समान नहीं समझते हैं। And that time the power of the Holy Spirit will not work in you. और उस कारण से आत्मा का जो सामर्थ है वो आपके जीवन में काम नहीं करता है, Because you never allowed him. क्योंकि आपने कभी इसको मौका ही नहीं दिया पवित्र आत्मा को पूरी सामर्थ में काम करने के लिए। You didn't let him teach. आपने उसे सिखाने का अवसर नहीं दिया। You didn't let him remind you anything. आपने जो है अवसर नहीं दिया उसको कि वो आपको कुछ याद दिलाए। You didn't let him testify. आपने उसे अवसर नहीं दिया कि वो आपके द्वारा गवाही को दे। Then how is he going to give you the power? तो फिर वो आपको सामर्थ कैसे देगा? Today the Lord is calling the church to awake because the end time is very near. आज जो कलीसिया को परमेश्वर जगाना चाहता है, क्योंकि जो है अंत का समय निकट है। It is not the shortage of chair or mic or the space. It is the shortage of Holy Spirit. और जो है दिक्कत है कि चेयर की कमी नहीं है या फिर जगह की कमी नहीं है, कमी अगर कलीसियाओं में है तो वो है पवित्र आत्मा की। Holy Spirit is needed here and everywhere. पवित्र आत्मा आज इस कलीसिया में जरूरत है और हर जगह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की जरूरत है। How many of you feel I need to surrender myself back to the Holy Spirit? आज हम में से कितने लोग जो आज यहाँ वचन को सुने हैं, इस बात को सुनकर ये कहते हैं कि हाँ, मुझे अपने जीवन के अंदर पवित्र आत्मा की जरूरत है। Before taking the Lord's Supper, think once again, am I allowing the Holy Spirit to work in me in power? Because communion has power and that power works